السلام علیکم۔ ہماتن گوش میں خوش آمدید۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ہماتن گوش کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے، اور کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔ تقدیر کی فسوں گری، قسمت کی چال بازی یا مقدر کا کھیل، جرم، افسر شاہی اور جاگیرداری کے پس منظر میں لکھی گئی ایک دلچسپ داستان، گرداب۔ گرداب قسط نمبر 11۔ مجھ پر رحم کرے مائی باپ، رحم، میں آپ کی پائی پائی اتار دوں گا۔ میں اس قرضے کے بدلے ساری زندگی آپ کی غلامی کروں گا، بس ابھی آپ میری مدد کریں۔ غیاث محمد نے چودھری افتخار کے پیروں پر سر رکھ دیا۔ پرے ہٹ، پرے، میرے پاس تیری یہ 9 سربازیاں دیکھنے کا کوئی وقت نہیں۔ چودھری افتخار نے غیاث محمد کو دور کر دیا۔ آپ کو پیٹ سرکار کا واسطہ چودھری صاحب، آپ ہم کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹائیں گے۔ میں نے عرس والے دن اپنا چھلا پیر سرکار کی قبر پر چڑھا کر ان سے منت مانی تھی کہ پیر سرکار میری دھی کے بیاہ کے لیے کوئی بندوبست کروائیں گے۔ آپ تو پیر سرکار کا خون ہے چودھری صاحب، خون۔ آپ ان کے نام کی لاج نہیں رکھیں گے تو پھر کون رکھے گا؟ ہم نے تو سنا ہے کہ پیر صاحب کی درگاہ پر مانی گئی منت کبھی رد نہیں ہوا کرتی، ان کے دربار سے سب کی مرادیں پوری ہوا کرتی ہیں۔ وہاں سے مراد پا کر لوگ اپنی جھولیاں بھر کر نکلتے ہیں۔ پھر ہم پیر سرکار کے ماننے والے لوگ اور آپ کی رعایا ہو کر کیسے نامراد واپس جا سکتے ہیں جناب؟ نورا، جو اب تک خاموش بیٹھی تھی، اب تقریباً دہائیاں دینے لگی۔ اس کی انہی دہائیوں کو سن کر چودھری افتخار کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ نورا کا دیا حوالہ ایسا نہیں تھا کہ اسے نظر انداز کیا جا سکتا۔ یہ عقیدت مندی کے استحکام کا معاملہ تھا۔ اگر نورا اور غیاث نے ایسی کوئی منت مانی تھی تو اب اس کا پورا ہونا ضروری تھا، ورنہ ان کی عقیدت مندی میں کمی بھی واقع ہو سکتی تھی۔ ویسے بھی چودھری افتخار غیاث محمد کی درخواست کو رد کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، وہ بس اسے اپنے دباؤ میں لے رہا تھا۔ منہ کھولتے ہی مزاروں کی حاجت پوری کر دینے میں اس کی چودراہٹ کا روب قائم نہیں رہتا تھا، اس لیے بس وہ تھوڑی سی لے دے کر رہا تھا۔ حکمرانی کا لطف تو اسی وقت آتا ہے نا جب اپنے زیر نگی افراد کو پوری طرح سے خاک میں ملا دیا جائے اور ان کی کچلی ہوئی عزت نفس کی لاش پر سینہ تان کر چہل قدمی کی جائے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم نے پیر دادا کا واسطہ دیا تھا نا، تو اب ہم بھی تمہیں کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائیں گے۔ کل آ کر منشی سے رقم لے جانا، وہ کاغذ پر تمہارا انگوٹھا لگوا دے گا۔ آخر چودھری افتخار نے نورا اور غیاث کو خوشخبری سنائی۔ مہربانی سرکار، مہربانی، بہت مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں پر اپنا کرم فرمائے، پیر سرکار کا نام رہتی دنیا تک قائم رہے، پیر سرکار کی چھاؤں میں آپ سدا پھلتے پھولتے رہے۔ درخواست کی منظوری کی خوشخبری سنتے ہی نورا نے دعاؤں کی بچھاڑ شروع کر دی۔ غیاث محمد، جو چودھری کی ٹھوکر سے فرش پر گر پڑا تھا، دوبارہ تیزی سے اٹھا اور اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گیا۔ بس بس، ٹھیک ہے، اب زیادہ چاپلوسیاں نہ کرو۔ پیر دادا کے نام پر قرض مل رہا ہے، لیکن تم لوگوں کو اس قرض کی ایک ایک پائی چکانی ہوگی۔ یہ نہ ہو کہ اس قرض کی ادائیگی سے پہلے تیسری بیٹی کے لیے دامن پھیلا کر ہمارے سامنے بیٹھ جاؤ۔ چودھری افتخار نے بیزاری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بہانے سے ماہبانوں کا ذکر بھی نکال ڈالا۔ اس رات ماہبانوں کے بچ نکلنے کا اسے بہت زیادہ ملال تھا۔ اچھا خاصا وہ اسے قابو میں کر چکا تھا کہ حادثے کی خبر سن کر بدحواس ہو کر جلدی میں اسے یہ خیال بھی نہ رہا کہ ماہبانوں کو اپنے شکنجے میں جکڑے رکھنے کا بندوبست تو کر کے چلا جاتا، لیکن اب کیا کر سکتا تھا؟ چڑیا تو ہاتھ سے نکل گئی۔ اس غفلت کا فائدہ اٹھا کر ماہبانوں فرار ہونے میں کامیاب ہوئی۔ بعد میں بھی وہ 2-3 دن تک تو شہر میں ہی مصروف رہا اور اس مصروفیت میں اسے ماہبانوں کا دھیان ہی نہ آ سکا۔ ذرا فرصت ملی تو ماہبانوں گاؤں سے باہر جا چکی تھی۔ چودھری افتخار اب تو ہاتھ ملتا رہ گیا، لیکن اسے معلوم تھا کہ ماہبانوں کا حصول اتنا مشکل کام نہیں۔ وہ چاہتا تو اسے فیصل آباد سے اٹھوا بھی سکتا تھا، مگر ابھی
दूसरे मामलात ज़्यादा तवज्जो तलब थे, इसलिए उसने वक्ती तौर पर महबानों का ख्याल दिल से निकाल दिया। उस वक्त नूरा और गयास मोहम्मद को अपने सामने पाकर उसे महबानों को याद करने का एक दफ़ा फिर मौका मिल चुका था और वो अचानक से उसका जिक्र छेड़ बैठा। तीसरी की मुझे कोई फिक्र नहीं, उसको उसके खाला खालू ने पाला है, वही उसके ब्याह की फिक्र भी करेंगे। मेरे ज़िम्मे तो बस इन 2 बेटियों का बोझ है, मुझे इन्हीं दोनों की फिक्र करनी है। एक को आपकी मेहरबानी से पहले ही निपटा चुका हूँ, अब दूसरी भी आपकी करम नवाजी से अपने घर बार की हो जाएगी। इसके बाद तो बस बेटा है, वो अपने जोरे बाजू पर जो कुछ करेगा वो अपने लिए खुद बंदोबस्त करेगा। गयास मोहम्मद ने आजी से जवाब दिया, तेरी साली और उसके शौहर का क्या कहना, वो तो शहर में रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो तेरी कुड़ी को किसी शहरी लड़के से ब्याह दे। चौधरी इफ्तिखार ने तशवीश का इजहार कर डाला। हमने अपनी धी उन्हें दे दी है चौधरी साहब, अब वो जो कुछ भी करे, अब चाहे वो उसके लिए जो भी बंदोबस्त करें हमें मंजूर होगा। उसने चौधरी साहब की बात का मुबहिम सा जवाब दिया, ऐसे कैसे कोई भी फैसला कर लेंगे वो लोग, इस गांव की कुड़ी वापस यहीं आनी चाहिए। चौधरी इफ्तिखार ने फौरन ही एतराज कर डाला, अगर ये आपका हुक्म है सरकार तो समझ लें महबानो वापस यहीं आएगी, हम आपकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी काम नहीं करेंगे। चौधरी इफ्तिखार का मूड देखकर गयास मोहम्मद ने फौरन खुशामदाना रवैया अपना लिया कि कहीं ऐसा ना हो कि एक बार फिर वो दोबारा हत्ते से उखड़ जाएं और कर्ज देने से इनकार कर दें। तुम हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ करने की हिम्मत भी नहीं रखते जनाब, महबानों को गांव वापस आना होगा, वो खुद ना आई तो हम उसे ज़बरदस्ती उठवा लेंगे। चौधरी इफ्तिखार महबानों के मामले में इस कदर दिलचस्पी क्यों ले रहा है, गयास मोहम्मद और नूरा की समझ में कुछ ना आ सका। लेकिन जब नूरा ने चौधरी के चेहरे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में नजर आती शैतानी चमक को देखकर नूरा धक से रह गई। उसे यकदम ही महबानों का उर्स वाली रात अबतर हालत में आखिरी पहर घर लौटना याद आ गया। बहुत दिनों से जो सवाल उसके जहन में अटका हुआ था उसका जवाब उसने चौधरी इफ्तिखार की आंखों में पा लिया था। इस जवाब को पाकर वो कांप उठी। चौधरी का अंदाज बता रहा था कि वो एक हाथ से निकल जाने वाले शिकार को दोबारा अपने पंजों में दबोचने के लिए बहुत ज्यादा बेताब है। आपा, मुझे बाजार जाना है, लच्छी की बच्ची से तो मैंने कहा था कि मेरी किताबें ख्याल से गाड़ी में रखवा देना, मगर उस कामचोर ने किताबें रखी ही नहीं। किताबों के बगैर तो मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है, वैसे ही यहाँ बहुत बोरियत है। रिमोट हाथ में लिए बिस्तर पर दराज टीवी के चैनल पर चैनल बदलती सनोबर के करीब बैठते हुए किश्वर ने अपना मसला बयान कर दिया। छोड़ो किताबों को, हर वक्त फजूल किताबें चाटने में वक्त बर्बाद करती रहती हो। टीवी देखो, इतने मजे के प्रोग्राम आते हैं टीवी पर। उधर गांव में तो सिर्फ पीटीवी के अलावा कुछ देखने को मिलता ही ना था, यहाँ देखो कितने ढेर सारे चैनल टीवी पर आ रहे हैं। हमें कोई फिल्म देखनी होगी तो वीसीआर पर कैसेट लगाकर देख लेते हैं। यहाँ एक वक्त में 6 जगह से फिल्में बैक वक्त आती हैं। ड्रामे भी इतने मजे के चलते हैं। मैं तो इन ड्रामों की औरतों के कपड़े और जेवरात अच्छी तरह से जहन में बिठा रही हूँ। जरा फारिग हो जाऊँ ना तो बाद में यहाँ आकर अपनी पसंद की सारी चीज़ें खरीद कर जाऊंगी। तुम भी ज़रा मेरे साथ बैठकर कपड़ों और बाकी चीज़ों के डिज़ाइन अच्छी तरह से देख लो, ताकि कहीं भूल जाऊं तो तुम याद करवा देना। किश्वर की बात को नज़रअंदाज करके सनोबर ने उससे कहा, आपको मालूम है आपा कि मुझे इन चीज़ों से कोई दिलचस्पी नहीं, ना मुझे कपड़ों और जेवर का कोई शौक़ है और ना ही मुझे ये ड्रामे और फिल्में कुछ अच्छी मालूम होती है, इसलिए मुझे तो आप माफ़ ही रखें। सनोबर के मशवरे पर किश्वर ने बेजारी का इजहार किया। तुम्हारे नज़दीक तो तुम्हारी किताबों के सिवा दुनिया में कुछ अच्छा है ही नहीं, बल्कि यूं कहना चाहिए कि सब कुछ बेकार है। अब्बा जी की शहरी बीवी मरते मरते तुम्हें एक अच्छा मर्ज लगाकर चली गई। सनोबर उसकी बेजारी पर चिढ़ सी गई। मर्ज नहीं लगाया था उन्होंने, वो तो मुझे पागल होने से बचाने का इंतज़ाम करके चली गई। मैं अल्लाह ताला से बहुत दुआएं करती हूँ उनकी बख्शिश के लिए। अगर आज मेरे पास इन किताबों का सहारा ना होता ना तो फिर मैं क्या करती, शायद मर गई होती। अच्छा चल, ज़्यादा उदास ना हो, ड्राइवर को भेजकर बाजार से नई किताबें मंगवा ले। किश्वर की बात सुनकर सनोबर को फौरन ही बहन की महरूमी का ख्याल आया और वो कुछ नर्म पड़ गई। ड्राइवर को नहीं भेजना, मैं खुद जाकर अपनी पसंद से किताबें खरीदूंगी। किश्वर ने तकरीबन जिद की, पर कहीं अब्बा जी को बुरा ना लगे।
आने से पहले उन्होंने सख्त ताकीद की थी कि संभल कर रहना है। सनोबर कुछ हिचकिचाने लगी। अब्बा जी पसंद के कपड़े लत्ते के लिए तुम लोगों को बाजार जाने की इजाज़त देते हैं ना, फिर मैं अपनी पसंद की किताबें खरीदने क्यों नहीं जा सकती? इससे पहले भी तो जब कभी आप लोगों के साथ बाजार गई हमेशा किताबें खरीद कर लाई थी कि नहीं? अब्बा जी ने कभी कोई एतराज़ नहीं किया, फिर आज क्यों करेंगे? और वैसे भी मुझे कौन सा दूर जाना है, यहाँ से लिबर्टी मार्केट दूर ही कितनी है, वहीं तक तो जाऊंगी। किश्वर ने फौरन ही दलील पेश की, जिस पर सनोबर को कायल होना पड़ा। अच्छा चली जा, चुप, साथ में रानी को भी साथ ले लेना, और हाँ सुन, जल्दी आना। ठीक है आपा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। किश्वर खुश बाहर निकली। थोड़ी देर बाद वो रानी के साथ बड़ी सी किताबों की दुकान पर मौजूद थी। शेल्फ में लगी किताबों को मुंतखब करके वो रानी को थमाती चली जा रही थी। अच्छा खासा ढेर लगाने के बाद काउंटर पर किताबों की कीमत अदा कर ली और फिर बाहर निकल खड़ी हुई। बीबी, इसमें से जो किताबें आसान अल्फाज में लिखी हूँ आप वो मुझे पढ़ने के लिए जरूर दीजिएगा। मुझे बहुत शौक है किताबें पढ़ने का। किताबों का ढेर उठाकर उसके पीछे आने वाली रानी ने गाड़ी में बैठने से पहले किश्वर से फरमाइश की, तुम्हारा जो दिल चाहे वो किताब पढ़ लेना, आखिर मैं भी तो पढ़ती हूँ। मैंने कौन सा कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, बस मुसलसल पढ़ते रहने से सब कुछ समझ आने लगा है। किश्वर फराखदिली से रानी को इजाज़त देते हुए गाड़ी में बैठ गई। रानी ने भी ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त संभाल ली। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट कर चुका था, लेकिन इससे पहले कि वो गाड़ी आगे बढ़ाता किश्वर की नज़र एक शनासा चेहरे पर पड़ी। जीन्स की पैंट और खद्दर का कुर्ता पहने अपने मखसूस हुलिये में वो यकीनन मास्टर आफ्ताब ही था। नज़ीर, ये सामने मास्टर आफ्ताब खड़े हैं ना? पहचान लेने के बावजूद किश्वर ने ड्राइवर से तस्दीक करना चाहिए। जी बीबी जी, ये तो अपने गांव वाले मास्टर साहब है ना, शायद यहाँ किसी काम से आए हों। जाओ इन्हें यहाँ बुला कर लाओ, कहना जहाँ जाना है वहाँ छोड़ देंगे। किश्वर ने ड्राइवर को हुक्म दिया। लेकिन बीबी, इसके साथ तो ड्राइवर किश्वर का हुक्म सुनकर कुछ गड़बड़ा गया। जो कहा है उस पर अमल करो, सुना नहीं तुमने? और हाँ, मास्टर साहब को बताने की जरूरत नहीं कि गाड़ी में हवेली का कोई और शख्स भी मौजूद है। किश्वर ड्राइवर की झिझक का सबब समझ चुकी थी, चुनांचे जरा रोब से उसे हुक्म देने लगी, साथ ही दूसरी हिदायत भी दे डाली, वरना उसे खदशा था कि मास्टर आफ्ताब लिफ्ट की इस पेशकश को कभी कबूल नहीं करेंगे। तुम पीछे आ जाओ रानी। अगली नशिस्त पर बैठी रानी को हुक्म देकर किश्वर ड्राइवर को मास्टर आफ्ताब से बात करते देख रही थी। मास्टर आफ्ताब ने जरा सी पसोपेश के बाद ड्राइवर की पेशकश कबूल कर ली थी और अब उसके साथ गाड़ी की तरफ चले आ रहे थे। गाड़ी के नजदीक आकर उसने जैसे ही अगली नशिस्त पर बैठने के लिए दरवाजा खोला, पीछे की नशिस्त पर मौजूद किश्वर और रानी पर उसकी नजर पड़ी। वो यकदम ठिठक गया। माफ कीजिएगा, मुझे मालूम नहीं था कि गाड़ी में खवातीन मौजूद है, वरना मैं ये ऑफर कबूल कभी ना करता। किश्वर जानती थी कि वो सही कहता है। गाड़ी के स्याह शीशों की वजह से वो दूर से उन लोगों की गाड़ी में मौजूदगी का अंदाजा नहीं लगा पाया था और ड्राइवर को खुद किश्वर ने अपनी मौजूदगी जाहिर करने से भी मना कर डाला था। बैठ जाइए मास्टर साहब, बैठ जाइए। आपको हमारी मौजूदगी का इल्म नहीं था, लेकिन मैंने खुद ड्राइवर को भेजकर आपको लिफ्ट देने की ऑफर की थी। ये बेचारा अपनी मर्जी से तो आपको ऑफर नहीं कर सकता ना। आपकी पेशकश का बहुत शुक्रिया जनाब, लेकिन कुछ मुनासिब मालूम नहीं होता। आप लोगों को न जाने कहाँ जाना हो, मेरी वजह से आपको बहुत जहमत करना पड़ेगी। मास्टर आफ्ताब ने शाइस्तगी से इनकार किया। जहमत का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप हमारे भांजे के उस्ताद हैं, आपका एक मकाम है, इसलिए थोड़ी बहुत जहमत हुई भी ना तो हमें नागवार नहीं गुजरेगा। किश्वर को मास्टर आफ्ताब से गुफ्तगू करना अच्छा लग रहा था, इसलिए वो मुसलसल इसरार पर इसरार किए चली जा रही थी। इज्जत अफजाई का बहुत शुक्रिया, लेकिन प्लीज आप लोग जाएं, मैं किसी रक्शे वगैरह से घर चला जाऊंगा। मास्टर आफ्ताब ने इस बार फिर दोबारा से इनकार किया। देखें मास्टर साहब, हमारे यहाँ पेशकश करके पीछे हटने का रिवाज बिल्कुल नहीं। आपके इनकार करते रहने से हमें यहाँ ज्यादा देर हो जाएगी, लेकिन बहरहाल आपको यहाँ छोड़कर जाने का कतई सवाल पैदा नहीं होता। इसलिए अब आपकी मर्जी है कि आप हमें लेट करवाएं या हमारी पेशकश कबूल करने का शर्फ बख्शें। देखते हैं कि आप क्या करते हैं। किश्वर के अटल अंदाज पर मास्टर आफ्ताब ने पहली बार नजर उठाकर बराह रास्त उसकी तरफ गौर से देखा। चादर ने उसके चेहरे के बेशतर हिस्से को ढांप रखा था, लेकिन दो स्याह आंखें बिल्कुल नुमाया नजर आती थीं।
इन आंखों में इसरार और जिद दोनों थे। मास्टर आफ्ताब को अंदाज़ा हुआ कि हवेली वालों में शुमार होने वाली ये लड़की भी अपने ख़ानदानी मिजाज के मुताबिक अच्छी खासी हठधर्म है, जो बगैर अपनी बात मनवाए पीछे बिल्कुल नहीं हटेगी। इस जिद से हार मानते हुए बिल आखिर वो गाड़ी में बैठ चुके थे। मुझे बस के अड्डे पर छोड़ दो, मुझे वापस पीराबाद जाना है। नशिस्त संभालने के बाद मास्टर आफ्ताब ने ड्राइवर को हिदायत दी और फिर इस तरह चुप साध कर बैठा कि गर्दन को जरा सी जुम्बिश भी ना दी। खुद किश्वर ने भी पूरे रास्ते उसे दोबारा तलब ना किया। उसकी ये खामोशी मास्टर आफ्ताब के लिए बाइसे सकून थी, लेकिन वो नहीं जानता था कि किश्वर के अंदर जो तूफान करवटें ले रहा है वो ज्यादा अरसे उसके इस सकून को बरकरार नहीं रहने देगा। न जाने क्यों अजीब सा खौफ था। सर, चौधरी इफ्तिखार लाइन पर है, वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, बात करवाओ। शहरियार ने अब्दुल मनान की दी हुई इत्तला के जवाब में जवाब दिया। क्या हाल है शहरियार साहब, आपको तो फुर्सत ही नहीं मिलती। हमने सोचा हम ही आपकी खैर खबर ले लें। लम्हे भर बाद चौधरी इफ्तिखार की आवाज शहरियार को सुनाई देने लगी। आपकी मेहरबानी है चौधरी साहब, बहुत मेहरबानी कि आप मेरा इतना ख्याल करते हैं। आपका शिकवा भी सर आंखों पर, लेकिन बस क्या करूं, कई मामलात में इतना उलझा पड़ा हूं कि फुर्सत ही नहीं मिलती। जैसे ही फुर्सत मिली जरूर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। शहरियार ने अपनी तय करदा हिकमत अमली के मुताबिक चौधरी इफ्तिखार के शिकवे का बहुत खुश अखलाकी से जवाब दिया। फुर्सत मिलने का इंतजार छोड़िए एसी साहब, एसी की कुर्सी पर बैठने वाले को कभी फुर्सत मिलती ही नहीं। ऐसे बंदों को अपनी मसरूफियत में से जबरदस्ती वक्त निकालना पड़ता है, और इस वक्त मैंने आपको जहमत दे ही दी इसलिए कि आपके बेहद मसरूफ वक्त में से आपसे कुछ वक्त मांग सकूं। वो किस सिलसिले में जनाब? चौधरी इफ्तिखार की बात सुनकर शहरियार का तजस्सुस जागने लगा। शिकार पर जाने का प्रोग्राम है। एसपी मुअज्जम तारड़ और फॉरेस्ट ऑफिसर इकबाल बाजवा के अलावा एक आध और दोस्त भी हमारे साथ शामिल होंगे। आप चलें हमारे साथ शिकार पर, बहुत लुत्फ आएगा आपको। प्रोग्राम तो वाकई बहुत दिलचस्प है, मगर बड़ा अचानक बना लिया प्रोग्राम आप लोगों ने। आप पिछले दिनों जितने टेंस नजर आते थे, इसके बाद किसी ऐसी एक्टिविटी को मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था। चौधरी इफ्तिखार का प्रोग्राम सुनकर शहरियार ने कुछ तबसरा करना चाहा। हम इन छोटी छोटी बातों पर घबराने वाले लोग नहीं जनाब, ऐसे मसाइल तो आते ही रहते हैं। इनसे घबरा कर जिंदगी के लुत्फ को गंवाया थोड़ी जाएगा। और सच कहूँ, जिंदगी का जो लुत्फ शिकार में है ना, वो और किसी शय में है ही नहीं। चौधरी इफ्तिखार बिल्कुल ठीक कहते थे। कहने को वो एक वडेरा, सज्जादा नशीन और कारोबारी फर्द था, लेकिन उसके हर रूप के पीछे एक शिकारी छुपा बैठा था, जो सिर्फ जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता था, बल्कि उसके शिकार की फहरिस्त में इंसानी जान, मालो दौलत और लोगों की इज्जत समेत सब कुछ शामिल था। अपने हर शिकार के लिए वो भरपूर मंसूबाबंदी करता था और उसे कभी अपने मकसद में नाकामी भी ना हुई थी, इसलिए वो खुशहाल था। चले, मैं कोशिश करूंगा कि जिंदगी के इस सबसे बड़े लुत्फ में आप लोगों के साथ शामिल हो सकूं। आप दिन और वक्त वगैरह बता दें ताकि मैं अपना शेड्यूल चेक करके आपको कोई हतमी जवाब दे सकूं। दिन हमने हफ्ते का तय किया है। हफ्ते की शाम को निकलेंगे ना, रात जंगल में कयाम करेंगे, फिर अगले रोज इतवार को शाम तक वापसी हो जाएगी। लेकिन आप ये मशरूत किस्म की हामियां बिल्कुल ना भरें। अगर आपको उस रोज आने में मुश्किल पेश आए तो हम अपने प्रोग्राम में कुछ तब्दीली भी कर सकते हैं। असल में तो ये प्रोग्राम आपके लिए तरतीब दिया गया है। बाकी अफराद तो कई बार पहले भी मेरे साथ जा चुके हैं। इस दफा तो आप भी हमारे साथ होंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। अगर ये बात है तो फिर मैं इनकार नहीं कर सकता। आपकी इस कदर ख्यालदारी के बाद इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। चौधरी इफ्तिखार की बात सुनकर शहरियार ने फौरन अपनी रजामंदी का इंदिया दे दिया। बस, तो फिर आप हफ्ते की दोपहर को पीराबाद पहुंच जाइएगा। दोपहर का खाना हवेली में साथ खाएंगे और फिर शाम तक निकल पड़ेंगे। आपको सिर्फ वहां पहुंचना है, बाकी के इंतजामात हमारी तरफ से हो जाया करेंगे। शहरियार के हाँ करते ही चौधरी इफ्तिखार का मिजाज और भी ज्यादा खुशगवार हो गया था। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल सही वक्त पर पहुंचूंगा। शहरियार ने उसे तसल्ली दी। बस, तो फिर हमें आपका इंतजार रहेगा। चौधरी इफ्तिखार
अब गुफ्तगू समेटने के लिए पर तोल रहा था। शहरयार ने जरा सा गला खंकारा और आवाज में गहरी संजीदगी पैदा करते हुए बोला, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी चौधरी साहब। पहले इरादा था कि बनफ्से नफीस आकर इस मौजू पर गुफ्तगू करूं, लेकिन अब हमारी एक बहुत ही खुशगवार मुलाकात तय हो चुकी तो अच्छा नहीं लगता कि मैं इस मौके पर कोई बहुत संजीदा नौयत का मसला छेड़ूं। इसलिए बेहतर है कि मैं इस वक्त फ़ोन पर आपसे गुफ्तगू कर लूं। बहुत शौक से एसी साहब, ज़रूर, क्यों नहीं। वैसे मुझे हैरत है कि ऐसा क्या मामला है जिस पर आप इतने संजीदा हो रहे हैं, और ना जाने क्यों। चौधरी इफ्तिखार अचानक से चौंक गया। बज़ाहिर अभी मामला इतना संजीदा नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में ये मामला काफी गंभीर हो सकता है। असल में कल के अखबार में एक कॉलम छपा है। कॉलम निगार ने बराह रास्त तो किसी गांव या उसके किसी नुमाइंदा शख्स का नाम नहीं लिखा, लेकिन उसने देही इलाकों की अबतर हालत पर काफी ज्यादा तनकीद से बात की है, और इस तनकीदी तबसरे में उसने कई ऐसे जुमले लिखे हैं जो बराह रास्त पीराबाद से ताल्लुक रखते हैं। उसने लिखा है कि देही आबादी में बुनियादी सहूलियात का फुकदान है, और अगर कोई सहूलत मौजूद है तो भी उसके समरात सिर्फ बड़े लोगों तक महदूद है। बड़े बड़े वडेरों और जमींदारों ने मज़ारों का जीना हराम कर रखा है। वो तरह तरह के हथकंडों से उन गरीब मज़ारों का इस्तेहसाल करते चले जा रहे हैं। एक तरफ बाकायदा जिस्मानी तशद्दुद किया जाता है तो दूसरी तरफ मज़ारों को इतनी कम उजरत दी जाती है कि वो अपना और अपने ख़ानदान का पेट पालने में नाकाम रहते हैं। शादी ब्याह, बीमारी और बाकी तमाम ज़रूरियात के मौके पर गरीब मज़ारे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए वडेरों और ज़मींदारों से कर्ज लेने पर मजबूर हो जाया करते हैं, और गरीब और अनपढ़ लोगों को ये कर्ज इतनी ज़्यादा सूदी शरह पर दिया जाता है कि वो सारी ज़िंदगी के गुलाम बन के रह जाया करते हैं और सारी ज़िंदगी कर्ज नहीं उतार सकते। जाने दें एसी साहब, जाने दें, ये कौन सी नई बातें हैं। ऐसा तो अक्सर ही लिखा जाया करता है। मैं इसके सच झूठ होने पर तबसरा नहीं करता। अगर ये सच है तो भी इस बात से मुझ अकेले पर कोई ज़र्ब नहीं पड़ती। मेरे साथ सारे ही इस इल्ज़ाम की जद में आ जाएंगे। चौधरी इफ्तिखार ने दरमियान से शहरयार की बात काट कर कान पर से मक्खी उड़ाने वाले अंदाज में कुछ तबसरा किया। ये तो मुझे भी मालूम है चौधरी साहब, लेकिन मैंने कहा ना कि कॉलम निगार ने अपना कॉलम यूं तो देही इलाकों की मजमूई सूरत हाल के बारे में लिखा है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जिनसे वाज़े तौर पर पीराबाद की तरफ इशारा होता महसूस होता है। अच्छा, वो कौन से पॉइंट हैं, जरा हम भी तो सुने। चौधरी इफ्तिखार के अंदाज में अब भी बेनियाजी शामिल थी। कॉलम निगार ने लिखा है कि कुछ वडेरे तो ऐसे हैं जो अपने इलाके के हुक्मरान के अलावा मजहबी पेशवा भी बन बैठे हैं। उन वडेरों ने पीरी मुरीदी की आड़ में सादा लोह अवाम के जहनों को माऊफ कर रखा है। वो डरते हैं कि वडेरों की मर्जी के खिलाफ कुछ करेंगे तो उन पर कोई आसमानी मुसीबत टूट पड़ेगी। ये वडेरे जाहिलाना सोच को बरकरार रखने के लिए अपने इलाके में तालीम को आम नहीं होने देते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर मज़ारे पढ़ लिख कर समझदार लोग बन गए तो उनकी गुलामी के शिकंजे से निकल पड़ेंगे। उन्होंने तरह तरह के हथकंडों से अपने इलाकों में तालीम का रास्ता रोक रखा है। फिर सबसे अहम और कारी ज़र्ब जो कॉलम निगार ने लगाई है वो आपके दादा साहब के उर्स के हवाले से लिखा है। उसने लिखा है कि एक नाम नेहाद सज्जादा नशीन और गद्दी पीर मज़ारों के खून पसीने की कमाई हड़प करके उससे अपने बुजुर्गों का शानदार उर्स मुनक्किद करते हैं। एक इलाके के बारे में तो ये इत्तला भी मिली है कि वहाँ छोटे जमींदारों से जबरदस्ती हर साल उर्स के मौके पर सोने के तारों से नक्श चादर वसूल भी की जाती है। उस चादर को मुर्दा पीर की कब्र पर जरूर चढ़ाया जाता है और इसके बाद जिंदा पीर उसके सोने को बेच बाच कर दाम खरे कर लेते हैं। क्या ये गलत नहीं? कॉलम निगार ने यह भी जिक्र किया है कि एक बार छोटे जमींदारों ने यह फैसला किया था कि वो जबरदस्ती की भेंट नहीं चढ़ाएंगे। भेंट लेने वालों को पहले से उनके इस इरादे की खबर मिल गई। उसने कुछ भी कहे बगैर खामोशी से उन जमींदारों का दिमाग ठीक करवाने का इंतजाम भी कर डाला। इत्तफाक से जिस नहर के पानी से इर्द गिर्द के छोटे गांव देहातों को और बाकी इलाके को
پانی سپلائی کیا جاتا تھا اس نہر کی لوکیشن کچھ ایسی تھی کہ سجادہ نشین زمیندار کا اس پر بہت زیادہ تسلط تھا۔ پھر محکمہ انہار اور آبپاشی میں اس کا بہت اثر و رسوخ بھی تھا، اس لیے چھوٹے زمینداروں کی سرکشی کا جواب اس نے اس طرح سے دیا کہ ان کے علاقے میں پانی کی سپلائی کو بند کروا دیا گیا۔ پانی نہ ملے تو کیسے فصلیں اگیں گی اور کہاں کے کھیت؟ چھوٹے زمینداروں نے سمجھ لیا کہ پانی روک کر انہیں کیا پیغام دیا گیا ہے، بس پھر تو وہ دوبارہ لائن پر آ گئے اور آئندہ کبھی سرتابی حکم کی جرت ان میں آ ہی نہیں سکی۔ یہ ساری وہ معلومات تھی جو شہریار کو اتنے عرصے میں مختلف لوگوں سے ملاقاتوں میں حاصل ہوئی تھی۔ معلومات فراہم کرنے والوں میں متاثرہ زمیندار لوگ شامل تھے اور کچھ سرکاری افسران بھی شامل تھے۔ شہریار نے اپنے طور پر بھی بہت زیادہ تحقیقات کی تھی اور ان معلومات کی تصدیق بھی کی تھی، اور پھر یہی معلومات ماسٹر آفتاب کے ذریعے اس کے صحافی دوست تک پہنچا کر کالم کی شکل میں چھپوا دی گئی تھی۔ کون الو کا پٹھا ہے یہ جس نے یہ ساری بکواس لکھی ہے؟ میں اس کا دماغ درست کر دوں گا۔ چودھری افتخار اب تک جو بہت زیادہ ریلیکس نظر آتا تھا، براہ راست خود پر چوٹ پڑی نا تو اچانک سے پھٹ پڑا۔ کہنے والا کوئی بھی ہو چودھری صاحب، اصل بات تو یہ ہے کہ آپ کچھ اس طرح سے جواب دیں کہ اس کا اعتراض ختم ہو جائے۔ اگر یہ بات غلط ہو تو کسی ایک کو ڈرا دھمکا کر اس کا منہ بند کر دینے سے تو مسئلہ نہیں حل ہوگا نا۔ آپ صرف ایک کا منہ بند کریں گے، جب ایک کا منہ بند ہوگا تو دوسرا بول پڑے گا۔ آج کے دور میں صحافی اتنا کمزور آدمی نہیں، آپ تو جانتے ہیں، ایک کالم اخبار میں چھپا تو دوسرا بھی تیار۔ کل اگر کسی پرائیویٹ چینل کی ٹیم اپنے کیمرے لے کر یہاں پہنچ گئی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ وہ تو سب کچھ دکھا دیں گے نا دنیا کو۔ اسپتال، سکول، سڑکیں، سارے ہی تو مسئلے پیر آباد میں موجود ہیں۔ شہریار نے چودھری افتخار کی رگڑائی کر ڈالی۔ آ کر تو دیکھیں، یہ ٹی وی والے میرے علاقے میں قدم بھی نہیں رکھنے دوں گا میں انہیں یہاں پر۔ اپنا اور اپنے کیمروں ہی کا نقصان کر کے جائیں گے یہاں سے۔ چودھری افتخار مزید طیش میں آیا۔ وہ اس بات کو اور بھی زیادہ ایشو بنائیں گے جناب، آپ کا نام مزید بدنام ہو کر رہ جائے گا۔ ابھی جو بھی آپ کے حمایتی ہیں وہ بھی عوام میں اپنی مقبولیت قائم رکھنے کے لیے ٹی وی کے نمائندوں کے سامنے آپ کی مخالفت قائم کریں گے، آپ کے فعل کو قابل مذمت قرار دیں گے۔ اگر آپ میری بات مانیں تو ذرا تحمل اور مصلحت پسندی سے کام لے لیں۔ ایک دو ایسے کام کروا دیں اپنے علاقے میں جن سے میڈیا میں آپ کی نیک نامی شامل ہو جائے۔ میرا وعدہ ہے کہ اگر آپ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں نا تو ٹی وی کوریج کا انتظام میں خود کرواؤں گا۔ شہریار کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے چودھری افتخار کو قائل کر ڈالے۔ آپ فرمائیے کہ میں کیا کروں؟ چودھری افتخار نے ہنکارا بھرتے ہوئے شہریار سے سوال کیا۔ ایک معاملہ تو پکی سڑک کا ہے، آپ چاہیں تو حکومت سے اس کام کے لیے منظوری اور فنڈز حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ اسکول کی توسیع کا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے ریکارڈ میں کئی درخواستیں موجود ہیں۔ اگر آپ اسکول کے ساتھ والی زمین پر اپنی ملکیت کے دعوے سے دستبردار ہو جائیں تو ہم اسکول کے لیے چند مزید کمرے تعمیر کروا سکتے ہیں۔ ویسے آپ چاہیں تو میرے پاس ایک دوسرا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ خود اپنی طرف سے وہ زمین اسکول کے لیے وقف کر دینے کا اعلان کر دیں۔ بنجر سی زمین ہے، آپ کے کسی کام کی بھی نہیں، لیکن آپ نے اگر کام کے لیے دے دی نا تو آپ کی نیک نامی اور شہرت دنیا یاد کرے گی، اور آپ پر سے یہ الزام بھی ہٹ جائے گا کہ آپ خود اپنے علاقے کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے کھڑے ہیں۔ شہریار بہت دھیرے دھیرے بڑے سبھاؤ سے چودھری افتخار کو اس موضوع کی طرف لا رہا تھا اور اب کسی خاطر خواہ نتیجے کا منتظر بھی کھڑا تھا۔ میں آپ کے ان تمام مشوروں پر غور کروں گا۔ ویسے اتنی ہمدردی سے میرے مسائل پر غور و فکر کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ چودھری افتخار نے جس لہجے میں یہ جملے کہہ کر گفتگو کا سلسلہ منقطع کیا، شہریار فیصلہ نہ کر سکا کہ وہ سچ مچ اس کے مشوروں پر غور کرنے کا ارادہ رکھتے بھی ہیں یا پھر اصل بات کو پا کر اس پر طنز کیا گیا ہے۔